السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں فرض اور واجب غسل کے سلسلے میں۔ کوئی مرد میرڈ ہے، اس نے اپنی بیوی سے مجاعمت کی ہے، جمع کی ہے، انٹرکورس کیا ہے، اور اس کے بعد اس پر غسل واجب ہو گیا۔ اب وہ غسل کس طرح کرے، اسلامی طریقے سے کس طرح وہ غسل ادا کرے؟ یا کوئی نوجوان لڑکا ہے، رات میں نائٹ فال لگ گیا، اب اس پر غسل واجب ہو گیا، اب وہ غسل کس طرح ادا کرے، سنت طریقہ کیا ہے؟ اسی طرح کوئی نوجوان لڑکی ہے، اس کا نائٹ فال لگ گیا یا کسی بھی وجہ سے احتلام ہو گیا، یا کوئی عورت ایسی ہے جو میرڈ ہے، اس نے اپنے شوہر سے مجاعمت کی، انٹرکورس کیا، اور اب اس پر غسل فرض ہے، واجب ہے، تو اسلامی طریقے سے، سنت طریقے سے وہ غسل کس طرح ادا کرے گی؟ یا اسی طرح کوئی پیریڈ میں ہے، کوئی عورت جو ہے پیریڈ میں ہے، مینسز میں ہے، مینسز کا جو خون آتا ہے، ماہواری جس کو بولتے ہیں، ہیز بھی بولتے ہیں، مینسز، پیریڈ، یہ سب الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو مینسز کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد عورت پر غسل واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بہرحال کہ غسل ہم کس طرح کریں گے سنت کے مطابق، اسلام کے مطابق؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں آپ، کہ اگر آپ پر غسل واجب ہو گیا، آپ پر غسل فرض ہو گیا، تو اب آپ کو ارادہ کرنا ہے پاکی کا، یعنی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں غسل کرنا چاہتا ہوں، میں پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، جو میں ناپاک ہوں اس ناپاکی سے میں پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب نیت جو ہے، نیت کے الفاظ زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، بس دل میں ارادہ کریں گے کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں، میں غسل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نوا ینوی نیتن جو ہے اس کے معنی ہی آتے ہیں دل میں ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ تو زبان سے الفاظ دہرانا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ بولنا ضروری نہیں کہ اب آپ عربی جانتے ہیں تو آپ بولیں گے اريد ان اكون مطهرا، اريد ان اتطهر، تو اس طرح بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اپنی زبان میں بولنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نیت کریں گے تو پھر آپ اگر باتھ روم میں جاتے ہیں، کیونکہ آج کل تقریباً ہر گھر میں لیٹرین باتھ روم ہوتا ہے، تو اگر آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، باتھ روم اگر لمبا چوڑا ہے اور 2 in 1 ہے، جس میں لیٹرین پوائنٹ بھی ہوتا ہے اور باتھ روم بھی ہوتا ہے، تو لیٹرین پوائنٹ میں آپ بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ اگر جانا چاہیں گے تو پیشاب وغیرہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن لیٹرین پوائنٹ پر جانے کے بعد آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، آپ اگر آپ باتھ روم میں جائیں گے، جیسے آپ باتھ روم میں وضو کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں اور وہاں پھر بسم اللہ، تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح آپ جب باتھ روم میں جائیں گے شروع میں لیٹرین پوائنٹ سے ہٹ کر تو آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہاں سے آپ ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ سب سے پہلے وضو کریں گے، مکمل وضو کریں گے، یعنی پہلے ہاتھ دھوئیں گے آپ، اور ہاتھ دھونے کے بعد آپ کلی کریں گے۔ کلی میں جو ہے جب غسل واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، تو بعض حضرات کے نزدیک، بعض علماء فرماتے ہیں کہ گرگرا کرنا ضروری ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے، بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ روزے سے ہیں تو گرگرا بالکل نہ کرے، چاہے رمضان ہو یا چاہے نفلی روزہ ہو۔
चाहे रमजान का रोजा हो या नफली रोजा हो, तो गरगरा बिल्कुल न करें। तो बाज हजरात ने फरमाया अब गरगरा करना जरूरी है, तो बेहतर है कि आप गरगरा करें अगर आप रोजे से नहीं है, और फिर नाक में पानी डालें और फिर मुंह धोए और हाथ धोए, बाजू धोए और मसा करे, और उसके साथ साथ फिर आप पैर धोए। पैर धोने के सिलसिले में आया है बुखारी शरीफ की 2 रिवायतें हैं, और भी कई सारी किताबों में आया है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाज़ मकामात पर पैर धोए हैं, अपने मुबारक पैरों को धोया है गुस्ल में, गुस्ल से पहले, और बाज़ मकामात में गुस्ल के बाद पैर मुबारक पैर धोए। अब इसमें जो है क्या करना चाहिए, उलमा तशरीह करते हुए, वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर बाथरूम कच्चा है या अगर बाथरूम में पानी जमा होता है या उसमें गंदगी है, तो बेहतर है कि पैर आखिर में धोएंगे। और अगर बाथरूम में पानी जमा नहीं होता है, अगर जैसे कि आजकल होता है कि सीमेंटेड है, कंक्रीट होते हैं, टाइल लगी हुई होती है बाथरूम के अंदर, तो पानी जमा नहीं होता है, लेकिन अगर पानी जमा होता है तो बेहतर है कि हम जो है आखिर में पैर धोएंगे, और अगर पानी जमा नहीं होता है तो बेहतर है कि हम शुरू में ही मुकम्मल वजू करेंगे और पैर भी धोएंगे उसी के साथ। फिर जब हम पैर धोएंगे, हम आपके सामने जो है तफसील से बयान करेंगे, और जो हम बात कहेंगे, जो हम मसला बयान करेंगे, उसका हवाला भी हम देंगे। तो अब वजू करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जो है, अब अगर आपके बाथरूम में शावर लगा हुआ है, क्योंकि बाज बाथरूम में शावर लगा हुआ होता है ऊपर में, और अगर आपके बाथरूम में भी शावर लगा हुआ है तो उधर भी आप गुस्ल कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट नल से गुस्ल करना चाहते हैं तो नल से भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और जब आप कपड़े निकालेंगे तो ये याद रखिए, आप अगर आप तन्हा बाथरूम में हैं और बाथरूम बिल्कुल बंद है, उसमें देखने की गुंजाइश नहीं है, कोई उधर झांक नहीं सकता है, तो इसमें फिर आपकी मर्जी है कि आप नंगे होकर भी नहा सकते हैं और सतर पर कपड़ा रखकर भी आप नहा सकते हैं, यानी चड्डी, कच्छा और जिसको नेकर वगैरह ये सब आप पहन सकते हैं, ये सब पहनकर भी आप नहा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं। बेहतर है, बाज़ उलमा ने फरमाया है कि बेहतर है कि आप चड्डी पहनकर नहाए, ये ज्यादा जो है अदब के मुनासिब है। लेकिन अगर आप चड्डी नहीं पहनेंगे, बिल्कुल नंगा होकर, चाहे मर्द हो या औरत हो, बिल्कुल नंगा होकर अगर गुस्ल करना चाहेगा या चाहेगी तो कर सकती है और कर सकता है। अलबत्ता बेहतर यही है और सवाब इसी में ज्यादा है कि आप कुछ पहनकर गुस्ल करें। तो बहरहाल अगर अब शावर लगा हुआ है तो आप जो है सबसे पहले शुरू करेंगे दाएं कंधे से, दाएं कंधे से आप शुरू करेंगे। अगर शावर लगा हुआ है तो एक मर्तबा शावर की तरफ जाएंगे और दाएं कंधे पर पानी डालेंगे और उसके बाद थोड़ा हटेंगे, फिर दूसरी मर्तबा, फिर तीसरी मर्तबा, और फिर आप सर पर डाल सकते हैं और फिर उसके बाद बाएं कंधे पर। या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप डायरेक्ट सर पर डाल सकते हैं, फिर दाएं कंधे पर और फिर बाएं कंधे पर, फिर पूरे बदन पर। इस तरह आप कर सकते हैं, ये दोनों तरीके जायज हैं। इसके साथ साथ बुखारी शरीफ में भी आया है कि अगर आप डायरेक्ट पानी डालने से डरते हैं या आपका जिस्म कपकपाता है तो आप वहां
मल भी सकते हैं, मलना भी जायज़ है। ये याद रखिए आप, अगर आप पानी मलना चाहेंगे सबसे पहले तो वो पानी आप मल सकते हैं, जिससे आपकी सर्दी या जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा, ये भी जायज़ है। अब आपने जो है पानी डाल दिया है, ये तो हो गया शावर का मामला। अब अगर शावर नहीं है, अगर बाल्टी से डालना, बाल्टी है आपके सामने, आपके पास लोटा है या जग है, मग है, तो फिर उसका भी यही तरीका है कि पहले 3 मग एक एक करके दाएं तरफ, फिर सर पर, फिर बाएं तरफ, या पहले आप सर पर डालें, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर आप जिस तरह चाहे उस तरह आप डाल सकते हैं। और इसमें उलमा ने लिखा है, ये भी लिखा है कि अगर आपको कोई गंदगी लगी हुई है, अगर आपके बदन पर कोई नापाकी है, तो जिस वक्त आप गुस्ल करने जाएंगे, यानी सर और कंधे पर पानी डालने से पहले आप उस नापाकी को दूर करेंगे, आप उस नापाकी को दूर करेंगे। लेकिन अगर वो वुजू से पाक हो चुकी है, अगर वो नापाकी या गंदगी दूर हो चुकी है जिस वक्त आपने वुजू किया हो, तो फिर जरूरी नहीं है। लेकिन ये बात आप याद रखेंगे कि गुस्ल के दौरान गुस्ल आप किबले की तरफ मुंह नहीं करेंगे, ना ही पीठ करेंगे। कोशिश करेंगे बचने की, जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि आप बिल्कुल भी किबले की तरफ मुंह नहीं करेंगे, ना ही पीठ करेंगे। और अब इसमें क्या करना है, मजीद ये करना है कि पूरे बदन पर पानी फेरना है। बदन में बिल्कुल भी एक बाल के बराबर भी सूखा नहीं रहना चाहिए। गुस्ल में 3 फर्ज है, एक है कुल्ली करना, और दूसरा है नाक में पानी डालना, और तीसरा है पूरे बदन पर पानी फेरना, पूरे बदन पर पानी पहुंचाना। तो पूरे बदन पर आप पानी पहुंचाएंगे, कुल्ली करेंगे और नाक में पानी डालेंगे, तो इससे आपका वुजू, इससे आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। और ये सुन्नत तरीका है। लेकिन ये याद रखिए आप, अगर आप ये तरीका इख्तियार नहीं करते हैं, इस तरीके से हटकर कोई दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं, तब भी आपका गुस्ल अदा हो जाएगा, लेकिन गुस्ल करने के सवाब नहीं मिलेंगे। यानी सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने के सवाब नहीं मिलेंगे। और गुस्ल पाकी करने के तो सवाब, पाकी हासिल करने के तो सवाब मिल जाएंगे, लेकिन सुन्नत के मुताबिक गुस्ल अदा करना, उसके सवाब नहीं मिलेंगे। और इसी तरह अगर आप नदी में नहाना चाहेंगे, कोई नहर है, नदी है, उसमें आप नहाना चाहेंगे, उसमें भी आप जो है, अगर उसके नदी के शुरू में अगर सीमेंट के पाए बने हुए हैं, स्टेप्स बने हुए हैं, तो वहां पर आप शुरू में ही वुजू बना सकते हैं, और फिर बाज़ाब्ता तौर पर यही तरीका इख्तियार कर सकते हैं, और बाद में ये तरीका इख्तियार करने के बाद आप नदी में भी उतर सकते हैं। और अगर आप नापाकी की हालत में डायरेक्ट नदी में चले जाते हैं, नहर में चले जाते हैं, दरिया में चले जाते हैं, या समंदर में चले जाते हैं, तो याद रखिए समंदर, नदी, नहर, ये सब चीजें जो है नापाक नहीं हो जाएंगी। ये सब चीजें आपकी नापाकी से नापाक नहीं हो जाएंगी, ये याद रखिए आप। अगर आप उसके अंदर फिर बगैर ये जो तरीका हमने बयान किया है, इस तरीके से हटकर आप नदी के अंदर, नहर के अंदर गुस्ल करते हैं, तो आपका गुस्ल तब भी अदा हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के तरीके के मुताबिक जो गुस्ल करता है उसको जो सवाब मिलता है, वो सवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पाकी हासिल करने का सवाब आपको जरूर मिलेगा। तो लिहाजा वहां पर भी आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा, वहां पर भी आप पाक हो जाएंगे, चाहे आप मर्द हो या औरत हो। तो आप हवाला देख सकते हैं, अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 32 है, और फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 14, और फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 284, और इसी तरह बुखारी शरीफ
जिल्द नंबर 1 चैप्टर किताबुल गुस्ल यानी चैप्टर हाउ टू टेक बाथ, और मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 किताबुल हैज चैप्टर पीरियड, ये आप देख सकते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप इस पैगाम को, आप इन मसाइलों को दूसरों तक पहुंचाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।